that there will be no damage as far as the structure is concerned. Security has also been beefed up near the Gyanvapi complex. Remember, the Muslim side is worried about damage being caused to the structure. As I pointed out, the SI team has assured the Allahabad High Court that no damage will be caused to the structure while carrying out this survey. The Supreme Court will also hear a fresh plea challenging the orders of the Allahabad High Court allowing for the survey. The matter will be heard by a bench headed by the Chief Justice of India and other justices like J.B. Pardiwala and Manoj Mishra. 30 मेंबर एएसआई की टीम है ये और जो सर्वे की टीम है वो फिलहाल इस वक्त ज्ञानवापी के अंदर पहुंच चुकी है। इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले जो सर्वे की टीम है वो डस्टिंग का काम करेंगी। क्यों डस्टिंग का काम करेंगी? क्योंकि खुद जो एएसआई के अधिकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट में थे उन्होंने कोर्ट को ये जानकारी दी थी कि सबसे पहले वो डस्टिंग का काम करते हैं। डस्टिंग के बाद फोटो डॉक्यूमेंटेशन और फिर जीपीआर के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि कितने साल पुरानी है ये ज्ञानवापी परिसर, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू पक्षकार लगातार कहते आए हैं कि औरंगजेब के समय में मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया गया, तो ये कितने साल पुरानी है ये उसकी इमारतें, दीवारें, इस बारे में पता लगाना। सबसे पहले तो तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये आउटर लेयर है, ज्ञानवापी की जाने वाले रास्ते का ये आउटर लेयर है और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होंगे और वहां पर फिर पीएससी के जवान भी होंगे और उसके आखिरी में कमांडो फोर्सेस को तैनात किया गया, क्योंकि मैटर बहुत सेंसिटिव है। The 4 ladies will attend the survey and one member has gone inside. The one lady has gone inside. It is very important. Earlier we have seen when the survey was conducted for more than 5 hours, the team was there, and you can see, I will show you the visuals, because yesterday Allahabad High Court has given the green signal for the archaeological survey team to conduct the survey, and we are on the ground zero. You can see the tight security here, and the survey has begun. More than 30 members are there, and the Gyanvapi mosque is basically adjacent to Kashi Vishwanath temple, which is just 100 meters away from this. And today is a very important day because we have to see what results will come. The results from the archaeological survey team these results will prove that there was temple, and the temple was dismissed by Mughal leader Aurangzeb in the 17th century. So there are various questions, and we have seen in the Allahabad High Court judgment, because if we see the detailed judgment of the Allahabad High Court, they have rejected the Muslim plea, and the Hindu side is saying that this is a victory for us. But today, because the Supreme Court of India will listen to the plea of the Muslim side. सर्वे होना है और सर्वे के लिए पूरी तैयारी जो है एसआई की टीम कर चुकी है, जिला प्रशासन कर चुका है और हम लोग भी निकल रहे हैं। हम लोग भी जो है पूरी तैयारी के साथ जो है उस ज्ञानवापी परिसर में पहुंच रहे हैं जहां सर्वे होना है। जब एएसआई टीम अपना कार्य जब यहाँ कंप्लीट करेगी और वो सारे एविडेंस, सारे साक्ष्य जब न्यायालय के पटल पे जब वो रखे जाएंगे, तो उसके बाद जो परिणाम स्वरूप जो आदेश जो आएगा, जो जजमेंट आएगा, जो ऑर्डर आएगा, वो हम लोगों के पक्ष में आएगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। और आज जो है एएसआई का जो कार्य शुरू हो रहा है, अब वो एएसआई कितने दिन में करेगी, कैसे करेगी, ये एएसआई की टीम तय करेगी। वहाँ हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस अवेलेबल है और उस एविडेंस को सामने आना, समाज के सामने भी लाना, एज वेल एज ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी ले आना, जिससे जो हमारा जो जस्टिस पाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से निर्विवादित तौर पर कंप्लीट हो सके, उस चीज के लिए हम इंटरेस्टेड हैं। Let's also now bring in our colleague Siddhant, who in fact is joining us on the broadcast. Siddhant, a couple of things that I want to understand. One, do we have any clarity for how many days the survey will be on? And for today, is the survey over or is it still happening? And secondly, the number of teams that are conducting this survey. Well, yes, that's right. So what our colleagues are reporting from ground is that the survey will perhaps end in some time from now, and we can also expect this matter to be heard by Supreme Court today. And what Ananya is reporting, that the Gyanvapi matter is item number 37. And the matter is listed before the Chief Justice of India. So we could expect the hearing on the matter to begin any time. So this is perhaps for the second time that Muslim side has come to Supreme Court on the same issue, which is regarding the scientific examination of the mosque site. So on day one, when the survey teams reached the spot and they had started doing the scientific survey, at that point in time also they approached the Supreme
Supreme Court, and they did manage to get a stay. Then the matter was referred to the Allahabad High Court. Proper hearing took place at High Court, and after which High Court decided to uphold the lower court's order of allowing the scientific survey. Now, since again the survey has restarted today after the High Court's order, the Muslim side yesterday late evening again moved Supreme Court, challenging the entire exercise. Now, this time around, what are the grounds on which the petition has been filed is something which we are still trying to find out. But last time around, the grounds which they mentioned in the petition, perhaps the doubts they raised were A, that they did not get enough breather to approach the higher court, B, that there could be a possibility of excavation and because of which the site can get damaged. So Supreme Court gave them breather also last time, and also assurance has come from ASI and the government lawyer that there's not going to be any damage to the site. Despite that, if they have moved Supreme Court, it would really be interesting to see what arguments Muslim side advocate is going to do in the Supreme Court today to get a stay or perhaps to get relief or to stop this ASI scientific examination. Yeah, so that's correct, that because there have been multiple assurances that have been given that there will be no damage as far as the structure is concerned. I'll just request you to stay on with us. Let's get in some other reactions and we'll continue this conversation. Steps of the national political life see that the Modi government is trying to divide the people ahead of the elections to come. They want to make a division in the society. They want to make a Hindu-Muslim divide in the country, and they want to win the battle in that way. We are afraid that their attempt is to make a new Ayodhya in Gyan Vapi. The Places of Worship Act is very clear that what was the status quo in 1947 has to be continued. चलने का टाइम निर्धारित नहीं है, कब तक समापन होगा, क्योंकि लंबी चलेगी, साधारण सर्वे नहीं है। आप भी जान जाओ, यह सर्वे, यही सर्वे जो अयोध्या में हुआ था 7-8 महीने चले थे। तो आप घबराओ मत, 1-2 दिन में नहीं होने वाला, बढ़िया से होगा, पूरी जांच होकर स्पष्ट हो जाएगी। ऐसा है कोर्ट का आदेश है, और कोर्ट के आदेश में एक पक्षी कार्रवाई भी होती है। यहाँ कोई पंचायत नहीं को नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है सर्वे, और सर्वे अपना अलग टीम है, वो निष्पक्ष टीम है, और दौरान जो सर्वे हो रही है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो रही है, वो अपने एक बिंदुओं पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके अपनी रिपोर्ट देगी। वो सामान्य चीज नहीं, एक टीम दे रही है, एक संस्था है सर्वे। अरे भाई देखिए, वो इनका व्यक्तिगत मामला, मुस्लिम पक्ष रहे या न रहे, ये हम अपने पक्ष को जानते हैं। हमारा पक्ष जो है दृढ़ता के साथ वहाँ खड़ा है, पूरी लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है। हम लोग न लटकाने वाले हैं न भटकाने वाले हैं, और न ही हम लोग भागने वाले हैं। हम लड़ाई को मुहिम तक, इस बाबा आराध्य जो हमारे आदि विशेषवर हैं, इनको मुकाम तक पहुँचा के ही छोड़ेंगे। ये जो दावा मुकदमा हम लोगों ने शुरू किया है, इसको अपनी मंजिल तक पहुँचाएंगे। इसलिए मुस्लिम अगर भाग रहा है, ये उनकी समस्या है। Let's continue the conversation with our colleagues. I'll request Siddhant to stay on with us. We also have our colleague Amit who's joining us on the broadcast. Amit, क्या जानकारी है आपके पास? क्या आज के लिए सर्वे की प्रक्रिया खत्म हो गई है? देखिए, तस्वीरें खत्म नहीं हुई है क्योंकि सर्वे का काम फिलहाल रुका है, लेकिन 2 बजे के बाद एक बार फिर से सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। जैसे ही जुमे की नमाज खत्म होगी और खत्म होने के बाद या फिर से जो है जो एएसआई सर्वे का काम है वो जारी रहेगा, और जारी कब तक रहेगा? सूर्यास्त तक। एएसआई की जो टीम है, एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर ने यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन को यह जरूर कह दिया है कि उनको सर्वे का काम पूरा करने के लिए तकरीबन 15 दिन का समय यानी 2 सप्ताह का मिनिमम समय उन्हें चाहिए ही चाहिए। इस बीच जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें भी हियरिंग होनी है, जिसमें एएसआई के तरफ से कहा जाएगा कि उन्हें और ज्यादा समय चाहिए एएसआई सर्वे को लेकर। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग है, लेकिन मैं आपको एक बार एक तस्वीर यहां पर दिखा देता हूं कि देखिए फिलहाल यहां पर आप जिस तरीके से हम सुबह तस्वीरें दिखा रहे थे दर्शकों को कि यहां पर काफी ज्यादा पुलिस अलर्ट थी, अभी भी पुलिस अलर्ट है, लेकिन संख्या बल में थोड़ी कमी है। वजह साफ है क्योंकि 12 बजे जो सर्वे का काम रुकना था वो रुक चुका है जुमे की नमाज को लेकर। जो अभी
मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो ज्ञानवापी मस्जिद में एंटर कर रहे हैं। 1:30 बजे नमाज अदा होनी है, 1:30 बजे नमाज अदा होनी है और उसके बाद एक बार फिर जैसे ही नमाज खत्म होगी और उसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन में एएसआई की टीम यहां पर पहुंचेगी और उसके बाद वो सर्वे का काम यहां पर शुरू करेगी। तो हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक और अहम जानकारी जो अभी तक सर्वे हुआ है, सुबह 8 बजे सर्वे शुरू हुआ, 12 बजे तक सर्वे चला है और इस बीच सर्वे में सर्वे के दौरान जो है एक नक्शा बना लिया गया है। 4 नक्शे बनाए गए हैं, सभी पार्ट्स के, ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के सभी पार्ट्स के नक्शे बनाए गए हैं और जो एएसआई की टीम है उन्हें भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये जो चारों पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये सभी एएसआई की टीम जो है उस नक्शे के हिसाब से काम करेंगी। जी सो अमित, जैसे आप बता रहे हैं कि अभी के लिए सिर्फ सर्वे को रोका गया है, 2 बजे के बाद सर्वे की प्रक्रिया वापस शुरू हो जाएगी और आप ये भी बता रहे हैं कि 4 टीम्स हैं एएसआई की जो अलग अलग जगह पर सर्वे कर रही हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ, मुस्लिम पक्ष की जो कंसर्न्स थी कि पूरे कॉम्प्लेक्स पे डैमेज होगा, वजूखाना एरिया डैमेज होगा, ये सब तो एक अश्योरेंस दी गई है एएसआई के एफिडेविट में कि ऐसा कुछ नहीं होगा, एक ब्रिक भी इधर से उधर नहीं होगी। उसके बावजूद मुस्लिम पक्ष का अब क्या कहना है, उनकी और क्या कंसर्न्स है? देखिए, मुस्लिम पक्ष अभी जो जिस तरीके से एएसआई सर्वे हो रहा है और जिस याचिका पर सुनवाई हुई है, मुस्लिम पक्षकार जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की है और वो इस एप्लीकेशन के मेंटेनेबिलिटी को वो चैलेंज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस तरीके से एएसआई सर्वे हो ही नहीं सकता है। बहरहाल इस पर सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि एएसआई सर्वे जारी रहेगा या स्टे होगा, लेकिन फिलहाल एएसआई ने एक बार फिर से एश्योर किया है कि किसी भी तरीके से एएसआई की टीम जो है अंदर ना कुदाल ना फावड़ा कोई ऐसी चीज नहीं ले गई जिससे कि जो ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स है उसको नुकसान पहुंच सके। दूसरी बात, एएसआई की सर्वे कब समाप्त करेंगे वो लोग जानेंगे, उस पर हम लोग का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग सहयोग करेंगे, जब तक टीम सर्वे करेगी तब तक हम लोग सहयोग करेंगे। टीम की संख्या लगभग 40 है। क्या एएसआई की टीम अलग अलग जगहों पर भी सर्वे कर रही है? बात कर रहे थे कि चाबी नहीं मिल रहा है, क्या चाबी मिला या नहीं? चाबी के बारे में अभी मिलने वाली बात, नहीं मिलने वाली बात अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि चाबी है तो मिल जाएगा। और बाकी लोग अंदर ही रहेंगे अभी? बाकी जो एएसआई की टीम है, बाकी सबके एएसआई की टीम अभी अंदर ही रहेगी। ठीक है सुधीर जी, ये बताइए अलग अलग सुधीर जी ये बताइए अलग अलग जगह पर सर्वे हो रही है एएसआई की टीम जो है। माइक सही पकड़ो। एक बार फिर से ब्रीफ करिएगा। मैं दोबारा मुकदमा देख करके पुनः जा रहा हूँ। सर्वे प्रारंभ हो गई है और 2 घंटे के लिए रुका गया है लंच के लिए, क्योंकि अभी नमाज का समय भी है, लंच भी है और कई खंडों में हो रही है। टीम की संख्या 40 है और 40 में जो 4-5 खंडों में हो रही है, जैसा हम आप सोच रहे हैं 1 घंटे में 2 घंटे में रिपोर्ट नहीं देंगे वो लोग एक बिंदु पर एक चीज पर गहराई से जांच कर रहे हैं, मशीन लगा के कर रहे हैं, फोटो खींच के कर रहे हैं, नाप जोख कर रहे हैं। वो साधारण सर्वे से बहुत हट करके सर्वे है। अभी आप मौके पे क्या दिखा? मौके पे क्या दिखा आपको? आपके साथ में जो चीजें इधर तार लगी हटाओ। सकारात्मक बढ़ रहा है, जो आप चाह रहे हो सारी चीजें सब कुछ है, क्योंकि सारी चीजों को प्रमाण दे दिया वो मिलेंगे, इसलिए सकारात्मक दिशा में ही सारे सर्वे सौहार्दपूर्ण। अभी तो शुरुआत है, अभी होने दीजिए। चतुर्वेदी जी, अभी क्या कुछ ऐसा कुछ नजर आया? नहीं, अभी कहीं कुछ ना, अभी तो केवल सर्वे शुरू हुआ है, शुरू होने दीजिए, आगे बढ़ रहा है। अब तो सिस्टम बना रहा है एसआई कैसे किया जाए, क्या किया जाए, सारी चीजें। पक्ष था क्या? नहीं, मुस्लिम पक्ष नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई लड़ रहा है, अपनी जो है अंतिम लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है और अंतिम लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में ही एसआई सर्वे रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो यहाँ कोई उनका प्रतिनिधि कोई नहीं था, न एडवोकेट था, न कोई जो है प्रतिवादी पक्ष था। वहाँ लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। जुम्मे की नमाज के लिए क्या आज नंबर ऑफ पीपल की? नहीं, अब ये सब बता पाना बड़ा मुश्किल है, प्रशासन बताएगा आपको।
So those were reactions coming in from lawyers and advocates of the Hindu side. They're confirming that yes, there are multiple teams of the ESI currently conducting the survey. There is a short break because it's Friday prayers time and there's also a lunch break. Post that the survey in fact will resume. Let's continue the conversation with our colleague who continues to report for us from outside where the survey is in fact taking place. अमित, जैसे मैं आपसे पहले पूछ रही थी कि मुस्लिम साइड अभी भी खुश नहीं है, वो टॉप कोर्ट पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक और कंसर्न उनका ये था कि वजू खाना का जो एरिया है उसको भी डैमेज पहुंचाया जाएगा। जो वजू खाना का जो एरिया है वो तो सर्वे का पार्ट ही नहीं होगा। क्या हिंदू पक्ष इससे सेटिस्फाइड है कि जो भी फाइनल आउटकम होगा सर्वे का उसको वो स्वीकार करेंगे? तो फिर ये कार्रवाई अपनी कितने लोग मौजूद थे? देखिए, हिंदू पक्ष इस वक्त हमारे साथ ही है और थोड़ी देर में वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। जो वजूखाना का जो एरिया है उस वजूखाना के एरिया में नहीं हो रहा है सर्वे और हिंदू पक्ष सेटिस्फाइड है इसको लेकर। हिंदू पक्ष का साफ साफ ये कहना है कि वहां पर कोर्ट कमिश्नर पहले ही सर्वे कर चुके हैं और वो जो मैटर है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसको लेकर कहीं भी हिंदू पक्ष चिंतित नहीं है। लेकिन हिंदू पक्ष का ये साफ साफ ये कहना है कि मुस्लिम पक्षकार जो अपनी अंतिम लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है उसे अंतिम लड़ाई वहां न लड़के उसके जो लोग हैं उनसे यहाँ होना चाहिए। हिंदू पक्षकार इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, सर्वे का काम 12 बजे तक हुआ, किस तरीके से सर्वे हुआ है? सर्वे देखिए सुचारू रूप से सौहार्दपूर्ण तरीके से और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से एएसआई ने अपने काम को शुरू कर दिया है। वो अपना जो भी सिस्टम उसका है उस सिस्टम को लेकर वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। उनके कार्यशैली से हम लोग संतुष्ट हैं। साइंटिफिक तरीके से जांच करने के बाद मशीनों का इस्तेमाल हुआ, बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपना जो भी तरीका है नाप जोख सब कुछ कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, सारे क्षेत्र को सारे बिंदुओं को देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और वो उनका कुल मिला के सर्वे उनका सकारात्मक और आगे की ओर बढ़ रहा है। मुस्लिम पक्षकार नहीं थे अंदर आज? मुस्लिम पक्षकार अपनी अंतिम लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है एएसआई सर्वे रोकने के लिए। उनके सारे अधिवक्ता, सारा सिस्टम, सारी जो है सब लोग अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहां लड़ लें और लड़के वहां भी जो है ये सर्वे का आदेश हमारे पक्ष में आएगा, उनके प्रार्थना पत्र को खारिज करेगा। इसलिए उनको लड़ाई लड़ लेने दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। वजू खाने वाले जगह पर जहां पर वजू खाना होता था, कथित शिवलिंग मिला था, वहां पर एएसआई सर्वे नहीं हो रहा है। इसको लेकर कहीं आप चिंतित हैं? नहीं, कोई चिंतित नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो मामला जो है सील्ड एरिया का जिसमें शिवलिंग है, इसलिए उसको छोड़ के सारे बैरिकेटिंग के सारे एरिया जो है उस पे जो है ये सर्वे चल रहा है। मेरा आखिरी सवाल, क्या जो एएसआई की टीम है उन्हें 4 भागों में बांट दिया गया, सब अलग अलग जगहों पर अलग 4-5 टीमें है, यूनिट है, वो अपने हिसाब से सर्वे कर रहे हैं, ये उनका सिस्टम है, उसमें हम लोगों को कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। वो 4-5 यूनिटें लगी हुई हैं, चारों दिशाओं में अपने यूनिट को लगा के वो कार्य कर रहे हैं। अंदर सुरक्षा के पुख्ता, बिल्कुल सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, बाहर से लेकर अंदर तक सुरक्षा प्रशासन जो मुस्तैद है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था उसका टाइट है। तो हिंदू पक्षकार निकले हैं और देखिए हर तरफ हर हर महादेव के नारे यहाँ पर भी हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर, मैं आपको तस्वीरें लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। हिंदू पक्ष जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। हिंदू पक्ष का कहना है कि 4 तरीके से एएसआई टीम को डिवाइड किया गया है और सब अलग अलग पार्ट में खड़े हैं और अलग अलग तरीके से वो वहां पर सर्वे का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में है, वो अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है, ये हिंदू पक्षकार का कहना है। जी अमित, जैसे अभी आप हिंदू पक्ष के लॉयर से बात कर रहे थे, वो काफी संतुष्ट हैं जिस तरह की प्रक्रिया हो रही है। मैं आपसे एक चीज और समझना चाहती हूँ, डिप्लॉयमेंट जो बंदोबस्त है वो तो हमें दिखाई दे रहा है कि काफी टाइट है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, जो सर्वे की जो टेक्निक्स है, कौन सी ये वेरियस टेक्निक्स हैं जो सर्वे वाले एएसआई वाले यूज कर रहे हैं जिससे जो एंड रिजल्ट है दोनों साइड्स को एक्सेप्टेबल हो? हाँ, जीपीआर टेक्नोलॉजी की मदद से ये जांच की जा रही है जिससे ये मालूम चल पाए कि जो दीवारें हैं उसकी उम्र कितनी होगी। जो सॉयल है, दरअसल जो एएसआई की टीम है, सॉयल, मार्बल, सबकी उम्र पता लगाने के लिए वो जीपीआर मेथड के जरिए वो पता लगाएगी कि उनको उम्र कितना है। जो दीवारें बनी है वो कौन से स्ट्रक्चर में बनी है, कौन से साल में कौन सा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता था। तो इस तरीके से जीपीआर मेथड के जरिए वो उसके उम्र का पता लगा सकते हैं, दीवारों के उम्र का पता लगा सकते हैं। क्योंकि
एक तरफ मुस्लिम पक्षकार का दावा है कि 600 सालों से ये मस्जिद उनके पास है, तो दूसरी तरफ हिंदू पक्षकार लगातार कोर्ट में ये दलील देते रहे हैं कि औरंगजेब के द्वारा ज्ञानवापी परिसर को तोड़ा गया और मंदिर के ऊपर ही एक मस्जिद की गुंबद बना दी गई। और यही दलील जो है हिंदू पक्षकार चाहे वो जिला अदालत, चाहे वो हाई कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में देते आए हैं। और इसी का पता लगाने के लिए एएसआई सर्वे यहां पर आज कराया जा रहा है। और एएसआई की टीम इस पूरे सर्वे को करने के लिए, जो एएसआई के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं त्रिपाठी, उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जरूर कह दिया है कि उन्हें 15 दिन का वक्त चाहिए। हमारे सोर्सेस ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को क्लेम किया कि उन्हें एएसआई सर्वे करने के लिए 15 दिन का वक्त मिनिमम चाहिए और उसके बाद ही ये सर्वे का काम पूरा हो पाएगा। तो फिलहाल हिंदू पक्ष पूरी तरीके से संतुष्ट है जिस तरीके से साइंटिफिक तरीके से जांच एएसआई के द्वारा की जा रही है। एएसआई के जो टीम मेंबर्स है टोटल 30 हैं। इन 30 मेंबर्स को 4 टीम में बांटा गया है और कोई सॉइल की जांच कर रहा है नीचे की तरफ, तो कोई दीवारों की जांच कर रहा है, कोई गुंबद के नीचे की जांच कर रहा है। हर तरफ हर टीम पहले डस्टिंग की, फिर फोटो डॉक्यूमेंटेशन और उसके बाद जीपीआर मेथड के जरिए हर एक ब्रिक, हर एक पत्थर, हर एक ईंट की जांच कर रहे हैं। जी अमित, मैं एक चीज और समझना चाहती हूँ, क्योंकि ये सर्वे 24 जुलाई को बीच में रोका गया था जब मुस्लिम साइड का उन्होंने जो अपनी अपील है वो हायर कोर्ट में ली थी। तो एएसआई वाले आपको क्या बता रहे हैं कि 24 जुलाई को जो सर्वे हो गया था उस पार्ट से वापस सर्वे शुरू हुआ है या ये पॉइंट 0 से वापस पूरा शुरुआत हुई है? देखिए, एएसआई की टीम ने बाकायदे इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया था कि केवल 5% का ही जो 24 जुलाई को जो सर्वे का काम हुआ था, केवल 5% का ही सर्वे का काम पूरा हो पाया था। उसमें केवल उन्होंने डस्टिंग किया था और फोटो डॉक्यूमेंटेशन अभी करना था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था और उसके बाद उन्हें सर्वे का काम रोकना पड़ा था। ये एएसआई की टीम ने खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया। और रहा बात हमसे बातचीत का, तो एएसआई की टीम फिलहाल किसी भी मीडिया कर्मी से बातचीत नहीं कर रही है क्योंकि ये काफी सेंसिटिव मामला है, काफी संवेदनशील मामला है, इस लिहाज से वो किसी से बात नहीं कर रही है। लेकिन 5% का जो काम पूरा हो गया था उसके आगे एएसआई की टीम ने आज सुबह से काम शुरू किया है। एक बार फिर से जहां डस्टिंग का काम रुक गया था, जहां से आगे नहीं हो पाया था, वहां डस्टिंग का काम किया गया और डस्टिंग का काम होने के बाद उसके बाद फोटो डॉक्यूमेंटेशन और उस फोटो डॉक्यूमेंटेशन के बाद जीपीआर मेथड के जरिए वो उम्र का पता लगाना। तो इसी काम में जो जीपीआर मेथड है और फोटो डॉक्यूमेंटेशन के लिए उन्हें वक्त चाहिए 15 दिन का, ये साफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को वो बता चुके हैं। लेकिन डस्टिंग का काम हम ये बता सकते हैं कि ये पूरा हो गया है। हिंदू पक्षकार जो अंदर ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे वो काफी ज्यादा संतुष्ट हैं जिस तरीके से धीरे धीरे एएसआई सर्वे का काम लगातार आगे बढ़ रहा है। हालांकि अब थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। जी ओके अमित, we'll have to leave that conversation there. So as our colleague is reporting, the survey did start today. It's taken a short break. It will resume post lunch, and we're also understanding the entire process could take anywhere between 10 to 15 days. We'll keep a close eye on all these developments. For now, slipping into a very short